Hello students, welcome back to my YouTube channel Pillars Institute. Our today's topic for discussion is chapter number first, India size and location. Again, syllabus of class 9 CBSE. Today we are going to discuss about the size and the location of India and the relationship that India has with its neighbor. The first topic is size and area of the India. Second topic is location of India on map by using latitude and longitude. Third topic is advantages of geographical location of India. What are the benefits that we have with our geographical location? Political advantage as well as economical advantage. Fourth is India's relationship with the world. So now let us discuss our topic in detail. First, with the topic size and area of India. In terms of size, India has 3.28 million square kilometer area. It is a very wide area. 3.28 million square kilometer is the area of India mainland, which is 2.4% of the total world. This 3.28 million square kilometer is 2.4% of the total area of the world that world possesses. Let's talk about the boundary. India has a boundary of 15,200 km of mainland. The mainland of India has a boundary of approx 15,200 km. If we include the boundaries of island also, then it will increase by 7,516 km. This is the boundaries of India mainland as well as of the island that we have in Arabian Sea and Bay of Bengal, that is Lakshadweep and Andaman and Nicobar. Now talk about location of India on map. On a map, India has a location which is 8 degree 4 minute northing to 37 degree 6 minute northing. It is a latitudinal extension from 8 degree 4 minute northing to 37 degree 6 minute northing. And if we see the extent, longitudinal extent of the nation, which is 68 degree 7 minute easting to 97 degree 25 minute easting, longitudinal extension. So this is the location of India on map. If you have to find any location of any object on a particular map, you have to use a standard relevance, standard, that in a sense, if we say, if I need to find the position of P, if I need to find the position of point P, I must have to know the abscissa and ordinate of this 2D plane, two-dimensional plane का abscissa ordinate पता होना चाहिए. यानी in a context of this origin, I am going to observe my location. This is called relative positioning. Exact position तो पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम किसी की पोजीशन फाइंड करेंगे इट मस्ट बी रिलेटेड टू समथिंग एल्स. एग्जांपल के तौर पर तो मुझे अपनी लोकेशन बतानी है, तो मैं इस कमरे के बीच में खड़ा हूं, तो विद द कॉन्टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रूम आई एम स्टैंडिंग इन द मिडिल, तो मेरी पोजीशन कमरे के कॉन्टेक्स्ट में बीच में है. ठीक, तो कभी भी किसी की भी पोजीशन फाइंड करनी पड़ती है तो वी नीड टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड इन टू डायमेंशनल वे, इट इज latitude and longitude. In the same way, when on a map, two-dimensional map, if you need to find the location of India, then you have to use latitude and longitude as a standard. Latitude is a horizontal axis and longitude is a vertical axis, imaginary axis, which is used to find the location of an object on map. If you need to find an object and its location on a map, you need to have latitude and longitude. यानी अगर आपको मैप पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करनी है, किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है, किसी एरिया की लोकेशन फाइंड करनी है, you must have to use latitude and longitude. Latitude and longitude are the imaginary axis through which we can identify, through which we can find the location of an object on a map.
Latitude is a horizontal axis, imaginary axis, and longitude is a vertical imaginary axis. So the location of India on map, I have already explained that 8 degree 4 minute northing and 37 degree 6 minute northing and 68 degree 7 minute easting to 97 degree 25 minute easting. ये n जो यहाँ बना हुआ है particularly n, it is called as northing and this e is called as easting. It is called northing as because it is moving toward the north in a particular direction from the equator. That is why it is called as northing. And this is called easting as because it is moving toward the east from Greenwich zero. A standard 0 degree meridian से it is moving strangely toward the east. That is why it is called as easting. क्योंकि ये ईस्ट की तरफ फॉरवर्ड हो रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रही है, ईस्टिंग कहलाती है, और वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसीलिए नॉर्थिंग कहलाती है। आप जब ग्लोब लेंगे या मैप लेंगे तो उसमें आपको बीच में एक 0 डिग्री की हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलेगी जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस मिलेगी जिसे हम 0 डिग्री प्राइम ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो वो लैटिट्यूड का स्टैंडर्ड है 0 डिग्री का और ये लॉन्गिट्यूड का। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की तरफ मूव कर रही है वो ईस्टिंग कहलाती है, और इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ जा रही है वो नॉर्थिंग कहलाती है। इसीलिए इसको उसमें लिखा गया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थिंग टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थिंग, यानी एक नॉर्थिंग से दूसरी नॉर्थिंग के बीच का एरिया। इसी तरह से इस नॉर्थिंग से इस नॉर्थ के इस ईस्टिंग से इस ईस्टिंग के बीच का एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया लोकेट करने के लिए हमको दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा है और एक वो जहां पर एरिया एंड हो रहा है। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। एडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब ये है कि हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उससे हमको क्या बेनिफिट है। इफ यू ऑब्जर्व इनटू द मैप दैट वी आर बीइंग सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम थ्री साइड। साउदर्न पोर्शन जो इंडिया का है इट इज बीइंग सराउंडेड बाय द ओशियन। इसके राइट हैंड साइड की तरफ देखें, अगर नॉर्थिंग से देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे तो अरेबियन सी, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन। और ऊपर की तरफ देखा जाए इन द नॉर्दर्न पार्ट तो इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। ठीक, यानी इन द नॉर्दर्न पार्ट वी हैव द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज एंड इन द साउथ वी हैव water body, ocean body, Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. So it is being well protected by the nature. Our land, our India, it is being well protected by the nature. In the north, we are being protected by the physical barrier, which is Himalayan mountain, which is so high, so that no one can cross those mountains without any extra help. Normally, it is being very difficult to cross Himalaya with a force, with the army or with something. It is very difficult. So it acts as a physical barrier which protect the India from the invaders and foreign invasion. Ancient time से ही जो Himalayan mountain है, it act as a physical barrier that will protect the India from the foreign invaders and invaders. तो ये एक क्या करता है, political security provide करता है। इसी तरह से अगर हम साउदर्न पार्ट में देखें तो we are being surrounded by the water body. वहां से भी क्या होता है कि इतना easy movement, इतना ज्यादा आसान access बल्क ऑफ पीपल की नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। दूसरा, प्रेजेंट टाइम में देखें तो दीज कोस्ट लाइन, इंडिया हैज अ वेरी वास्ट कोस्ट लाइन, तो ये कोस्ट लाइन क्या करती है, हमको ट्रेड करने में हेल्प करती है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन डूइंग ट्रेड फ्रॉम द western countries as well as from the eastern countries, as we have both coastline, eastern coastline and a western coastline, तो हमको ट्रेड करने के लिए स्विफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। we are in the middle of the Indian Ocean and because of that we can trade in a western countries in a western direction easily as well as in a eastern direction in eastern countries, हम दोनों तरफ आसानी से ट्रेड कर पाते हैं। दूसरा, politically it is very important location in order to have a proper monitoring over the Indian Ocean and to the western world and the eastern world. So it provides a very good advantage in terms of politics, in terms of army perception. We are in a very good position, we are in a central position so that we can easily monitor all the activities of the eastern world as well as on the western world. So ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो इंडिया को उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें इन द नॉर्दर्न पार्ट वी हैव अ पास, वी हैव वेरियस पासेस थ्रू व्हिच वी कैन मूव टू द
डिफरेंट कंट्रीज। पाकिस्तान की तरफ से हमारा अफगानिस्तान से लिंक है, उससे हम यूरोप से लिंक हो जाते हैं, और एशियन टाइम से ये रूट जो है वो यूज किया जा रहा है ट्रेड पर्पस के लिए। फॉरेन ट्रेडर्स इसी रूट के थ्रू इंडिया आए। फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, मुगल एम्पायर के जो फाउंडर्स थे, टर्क्स थे, अरब्स थे, दे कम फ्रॉम दिस साइड, वो इसी तरफ से हमारी कंट्री में आया, और फिर हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी पैदा हुई, और यहाँ पर लोगों में क्या कहते हैं मिक्स कल्चर का एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बाहर के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ गए, और इस तरह से एक दूसरे कल्चर में आपस में इंटरमिक्सिंग होना स्टार्ट हुआ। इसी वजह से आज इंडिया के पास एक डाइवर्सिफाइड कल्चर, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग हैं। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी एट इट्स पीक, इतनी डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जितनी इंडिया में है। इट इज जस्ट बिकॉज दैट वी आर इन अ वेरी advantageous location through which we can easily trade with other countries, and this natural location also protect us from the foreign invaders and invasions. Hope I am very clear regarding with the advantages of geographical location. If you have any query regarding with that, you can ask in comment section. Now the fourth and final topic, which is India's relationship with the world. India has a very friendly relationship at present, but in the past, if you can say, so in the past there is no India. 1947, 15th August 1947 से पहले यहाँ princely states थी. There are different states living together. There are different states. There is no nation. It is the Britishers who conquer all these states and summon up into a one holding. उनको उन्होंने क्या किया, इंडिया क्या कैरेक्टरबूट किया। इससे पहले यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे। हालांकि ये काम इससे पहले भी पास में कई सारे रूलर्स ने किया, जिन्होंने अपने अगल बगल की स्टेट्स को कन्कर करके एक राज्य बनाया, जैसे अशोक, द ग्रेट अशोक, इसी तरह अकबर। तो इन सारे लोगों ने ट्राई किया इन सारी स्टेट्स को मर्ज करने का, मर्ज करके एक स्टेट बनाने का, लेकिन अपने अपने टाइम में ये पूरी तरह से इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। कोई ना कोई पार्ट इंडिया का था जो इंडिपेंडेंट रह गया था, कोई ना कोई स्टेट थी जो इंडिपेंडेंट थी, सारी की सारी स्टेट्स के अंदर अमल नहीं हुई, यानी मर्ज नहीं हुई। लेकिन ये ब्रिटिशर्स थे, जब वो आए और उन्होंने देखा कि सारे प्रिंसिपल स्टेट आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके सबको कन्कर करना स्टार्ट किया, और फिर फाइनली 1857 तक आते आते दे हैव कन्कर्ड होल ऑफ द नेशन, जिसके अंदर फिर साउदर्न पार्ट हो, सेंट्रल पार्ट हो, नॉर्दर्न पार्ट हो, वेस्टर्न पार्ट हो, ईस्टर्न पार्ट हो, सारा का सारा किसके अंदर में आ गया, ब्रिटिशर। यहां से हमको एक इंडिया, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट मिला। हालांकि तब भी ये प्रिंसिपल स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर 1947 में जब हमारी कंट्री आजाद हुई, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी स्टेट्स को ऑफर दिया दैट इट इज देयर डिसीजन कि वो इंडिया में आना चाहते हैं, दैट दे वांट टू कम विद इन इंडियन टेरिटरीज, या अगर वो अकेले रहना चाहते हैं, दे हैव द ऑप्शन टू बी इंडिपेंडेंट स्टेट। तो फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस से सारे के सारे स्टेट्स क्या हुए, इंडियन फेडरेशन में आकर मर्ज हो गए। इसीलिए हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है, दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये अकेले कोई कंट्री नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है, इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे वी आर अ डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर, दैट इज हम फेडरेशन यूनियन ऑफ स्टेट है, कई सारी स्टेट्स को मिलाकर ये कंट्री बनाएंगे। तो प्रेजेंट स्टेट में देखें तो इंडिया का जो रिलेशनशिप वर्ल्ड के साथ है वो बड़ा फ्रेंडली और पीसफुल है। हमने कभी किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया, हमने कभी किसी कंट्री की लैंड पजेस करने की कोशिश नहीं की। हाँ, दूसरों ने ऐसा हमारे साथ बहुत किया, तो फिर हमने उसका रिप्लाई किया। यानी वॉर जो भी हमारे साथ हुई है इन पास, वो वॉर हमारी ऑफेंस की वजह से नहीं, बल्कि हमने डिफेंस करते हुए वो वॉर लड़ी है, और फिर हमने बड़े अच्छे से डिफेंस भी किया। जिन्होंने भी हमारे ऊपर कोशिश किया हमारी लैंड को लेने के लिए, हमने उनको तोड़ जवाब दिया। यानी इंडिया की अगर हिस्ट्री में, इंडिया की पास्ट में वॉर्स हुई हैं, देयर आर 4 to 5 6 वॉर हुई है हमारे साथ, लेकिन ये वॉर एग्रेशन में नहीं हुई, बल्कि डिफेंस में लड़ी गई। जितने भी वॉर हमने अपने नेबर कंट्रीज के साथ लड़ी, वो डिफेंस में लड़ी। हमारा किसी के साथ भी कोई एनिमिटी वाला बिहेवियर या किसी तरह का कोई रिवेंजफुल बिहेवियर नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो वॉर जीतने के बाद उनके ऊपर फर्दर अटैक करते, लेकिन हमने उनको सिर्फ उनकी टेरिटरी से हटाकर वॉर में सस्पेंड कर दी। तो प्रेजेंटली हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडिया एज अ कंट्री, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वॉर रिलेशन विद एनी ऑफ द नेबर्स and to the world, but we have a very friendly and good relationship with the neighbors as well as with the world. We have a trade relationship. हमारे जो कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं, सबके साथ ट्रेड रिलेशन, रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, यूरोप में फ्रांस हो, जर्मनी हो, व्हाटएवर, अरब गल्फ कंट्रीज हो, we all always have a friendly and a good
relationship with all these countries so that we can attain peace and harmony. हमने हमारी पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि पीस एंड हार्मनी इसको अटेन किया जाए, और वर्ल्ड पीस को अटेन करने के लिए हमने कभी भी किसी के लिए ऑफेंस नहीं किया. यानी वी हैव अ वेरी गुड ट्रेड रिलेशनशिप विद ऑल अदर कंट्रीज एंड वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल अवर नेबर्स. सो ये था इंडिया का रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और कल्चरल सोशल रिलेशनशिप. इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमने ट्रेड किया, हमारे ट्रेड है, हर कंट्री से हमारा ट्रेड है. और सोशल रिलेशनशिप देखा जाए तो वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, हमने कभी किसी को ऑफेंड नहीं किया और हमेशा हेल्प की इन इमरजेंसीज. जब भी किसी कंट्री को इमरजेंसी आई, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, तो वी ऑलवेज एक्सटेंडेड आवर हेल्प टू ऑल आवर नेबर्स विदाउट एनी पार्शियलिटी. सो दिस इज द इंडियन रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स. अच्छा, हमारे नेबर्स हैं कौन कौन? बेसिकली अगर देखा जाए हमारे नेबर्स जो हैं तो उनमें कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और कुछ कंट्रीज हैं जिनसे कभी कभी कुछ अनबन भी हो जाती है, कुछ थोड़ा सा बिटर रिलेशनशिप हो जाता है, जिनमें पाकिस्तान, जिनमें चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये हमारे क्या हैं? नेबर्स हैं. इनको कलेक्टिवली सार्क कंट्रीज भी कहा जाता है. ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में आते हैं, जिसमें इनको सार्क कंट्री कहा जाता है, सार्क नेशन कहा जाता है, और ये हमारे नेबर्स हैं. हम सब मिलकर ही एशिया और साउथ एशिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं. With this we come to an end of the chapter. यहाँ पर ये चैप्टर छोटा सा था, बहुत ही कम कंटेंट के साथ. इस चैप्टर में जितनी भी चीजें थी वो एक्सप्लेन हो गई हैं. आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो रिलेटेड विद एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन द अपकमिंग वीडियो. Up till then, thank you very much. Again, I have a request कि please subscribe the channel and share it with other people so that everybody can take advantage, take benefit from this. Thank you very much.